हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, also called MR spectroscopy. It is a non-invasive imaging technique that provides chemical information. ये नया है, इससे पहले हमको MR जो था it was providing details about soft tissue delineation, but अभी chemical information. ठीक है, अरे क्लास तो हो जाने कौन तो पहले से ही थम्स अप कर रहा है भाई लोग। कौन है? क्या पता, चलो। So what is MR spectroscopy, magnetic resonance spectroscopy? It is a non-invasive technique that provides chemical information about tissue in the body. Unlike conventional MRI, which focuses on anatomical structures, magnetic resonance spectroscopy analyzes the biochemical composition of tissue, offering insights into the metabolic changes that may indicate disease. So we are just exploiting the new armamentarium of MRI that can delineate the tissue composition. Okay, how it works. Magnetic resonance spectroscopy uses same principle as MRI, relying on interaction between nuclear magnetic moments, typically hydrogen nuclei, and external magnetic field. It measures the resonance frequency of specific atomic nuclei like hydrogen, phosphorus, carbon within the tissue. These frequencies correspond to chemical environment of the nuclei and produce a spectrum with peaks representing specific metabolites. So, जिस टिश्यू में जितना स्पेसिफिक जो एटम्स होंगे उन when they are put under a magnetic field, depending upon those composition, किसका atomic weight कितना होगा, हाइड्रोजन कितना होगा, we get peaks that is transformed into the software which gives us a graphical representation of those molecules. So what is the procedure? After placing the patient on MRI scanner, a region of interest. आवाज आ रही है किसी की? So after putting in the MRI, we have a region of interest, for example, prostate. So our focus remains on that only. Is selected in the spectroscope. A pulse sequence such as point resolved spectroscopy PRESS, PRESS. A point sequence such as point resolved spectroscopy or stimulated echo acquisition excites the nuclei within the region of interest. So इसमें ये दो ways हैं where we can excite the nuclei of region of interest. क्या क्या है? Pulse sequence, point resolved spectroscopy or stimulated echo acquisition. The signal is emitted by the excited nuclei and recorded and analyzed to generate a spectrum. Spectrum क्या है? X-axis represent the chemical shift in parts per million, indicating the resonance frequency relative to standard. Y-axis shows signal intensity, which correlates with the metabolic concentration. So ये है हमारा. This is a normal. NAA is that acetic acid, creatine, choline. Okay. So this is in parts per million concentration. This peak is कितना signal molecule किस टिश्यू में कितना concentration of molecule है. So usually हमारे पास what we measure in MRI, myoinositol, choline, creatinine, GABA, NAA, non-acetyl aspartate है. This. Okay. So yes, जैसे क्रिएटिनिन है, कांस्टेंट पीक रहता है टिश्यू में, सो जस्ट एज अ रेफरेंस रहता है. गाबा इज इंक्रीज्ड इन हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी. So what the major use of MR spectroscopy is brain imaging, and we are now expediting into other organs as well. Like lactate is raised in ischemia, mitochondrial diseases. Our interest is choline, that is raised in tumors and demyelination. Okay. ये वाला जो third वाला है. When the ratio is more, it gets up, it indicates the tumor there in that area.
रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने बोला. So how MRS identifies tumor metabolic profile. अच्छा हुआ वो easy Tumors था, often have an altered metabolic profile compared to normal tissue. MRS can detect these differences by analyzing concentration of metabolites. Choline is elevated in tumor due to increased cell membrane turnover. So this is normal. In that abnormal tissue or tumor, this choline peak will go up. So apart from diagnostic, it uses also a sort of pathological insight of the tissue also. Creatinine is reduced in tumor. Okay, so comparatively creatinine कम हो जाएगा, ये peak. N-acetylcysteine is reduced in brain tumors as it is a marker of healthy neurons. Lactate indicates anaerobic metabolism, common in aggressive tumor, so that peak will go up. Lipids high level can indicate necrosis in malignant tumor. Differentiation of tumor types. MR can distinguish between benign, malignant tumor grades and other lesions like abscesses depending upon किसमें कितना peak ज़्यादा होगा. Okay. Mechanism. Tumor cells exhibit altered mechanism, Warburg effect due to their increased growth rate and demand of energy. MRS can detect these metabolic shifts, allowing early diagnosis, grading, monitoring response. Okay. So early diagnosis, grading में monitoring response. तीन चीजों में हम यूटिलाइज कर सकते हैं. Application of MRS in oncology is brain tumors, differentiating gliomas from low grade to high grade or metastasis. Prostate identifying aggressive tumor versus indolent tumors. Breast monitoring treatment response. Neurological में Alzheimer's disease. Pediatrics में diagnosing inborn error in metabolism, especially mitochondrial. Musculoskeletal में assess metabolic activity of muscle or bone disease. Example of brain tumor is glioblastoma. Choline up जाएगा, NNA down हो जाएगा. Lactate also peaks up. Meningioma, alanine peak होता है. Prostate, high choline to citrate ratio. Okay. Breast में detection of total choline compounds indicator of malignancy. Advantage is non-invasive, safe, provides functional insights beyond anatomical imaging, can monitor disease and treatment response. But at the limitation, low spatial resolution compared to MRI, requires expert interpretation of the spectra, limited availability of clinical practice and data. Okay, MRS complements traditional imaging, enhances diagnostic accuracy, guides clinical decision making in oncology and other fields. तो ये है MR spectroscope. Okay. Craniofacial resection पे एक क्वेश्चन था, ठीक है. So what is anterior skull base और क्यों important है? So it is a route of spread of these tumors. मतलब head neck tumors, oral cavity अपन पढ़ रहे थे इसके पीछे, तो उसके continuity में इन्होंने दिया है कि it is route of spread of these tumors, oral cavity tumors, determined by complex anatomy of craniomaxillofacial compartments. May invade laterally into the orbit or middle fossa, inferiorly into the maxillary antrum and palate. ये अपन इसका anatomy पढ़ेंगे तो थोड़ा और clear होगा. Posteriorly into the nasopharynx and pterygopalatine fossa, and superiorly into cavernous sinus and brain. Surgery remains the important modality of treatment of anterior skull base tumors. Combined craniofacial techniques for resection of tumors of the anterior skull base were described by Katcham. Craniofacial approach and subcranial approach have become standard of care for treatment of malignant tumors involving anterior skull base. ठीक है, तो anterior skull base में क्या क्या आता है? Most important है pterygopalatine fossa. तो पहले इसको देख लेते हैं कहाँ है. Pterygopalatine जो fossa होता है वो इसके अंदर, मतलब ये अपन देख रहे हैं ना, इधर से फर्स्ट नंबर जो है ये टेरिगोमैक्सिलरी फिशर है. ये दिस इज ये टेरिगोइड प्लेट, ये मैक्सिला, ये बीच में फिशर, तो दिस इज टेरिगोमैक्सिलरी फिशर. ये एंट्री है इसमें, इससे जाएंगे अंदर तो आ जाएगा फोसा. ये पूरा फोसा है इसके पीछे अंदर, ठीक है, टेरिगोपैलेटाइन फोसा. और फिर इसका उधर से स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन रहता है, उधर मीडियल साइड स्पिनोपैलेटाइन
फोरामेन। ठीक, तो एंट्री क्या हुई? टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। कहाँ है ये है टेरिगोइड प्लेट, ये मैक्सिला। तो इनके जंक्शन पे ये बन रहा है टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। इसके एंट्री के बाद आ जाएगा फोसा, टेरिगो पैलेटाइन फोसा, पीपीएफ, एंड देन मीडियली स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन आ जाएगा। और अगर इसको देखें तो ये फिशर हो गया अपना टेरिगोइड प्लेट मैक्सिला, दिस इज टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। उसके अंदर में ये जो दिख रहा है अपने को, ये पूरा फोसा है। ठीक है, तो इसका लेटरली क्या है? टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। पता ही अपने को, इधर से एंट्री लेगा तो लेटरली ये मिलेगा। सुपीरियरली अपना आ रहा है ये ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनोइड। ठीक है, स्पिनोइड बोन का ही पार्ट है पूरा ये प्लेट्स भी। सो ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनोइड इज सुपीरियरली। पोस्टीरियरली क्या आ रहा है? दिख ही रहा है अपने को, टेरिगोइड प्लेट्स। ठीक है, एंड मीडियली क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का। ठीक है, ये मीडियल आ रहा है। एंड इंफीरियरली आ रहा है पिरामिडल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन, ये रहता है इंफीरियरली, जो ये पैलेटाइन का एक ब्लू पार्ट से दिखाया है इसने। ठीक है, तो ये हो गया पूरा अपना टेरिगो पैलेटाइन फोसा। ओके, अब पढ़ते हैं उसको। टेरिगो पैलेटाइन फोसा। Fossa has the shape of inverted pyramid. Anterior border is posterior surface of the maxilla and the maxillary sinus cavity. ठीक है, posterior border is composed of the base of the medial and lateral pterygoid plates and greater wing of sphenoid. ठीक है, the maxillary division of the trigeminal nerve exits the middle cranial fossa and enters the lateral portion of PPF through foramen rotundum. तो ये ध्यान रखना अपने को। मैक्सिलरी, ठीक है ना, मैंडिबुलर नहीं है, मैक्सिलरी। मैक्सिलरी जो ब्रांच रहता है ट्राइजेमाइनल नर्व का, ट्राइजेमाइनल नर्व के 3 ब्रांच रहते हैं ना, 1 2 3। फर्स्ट इज ऑप्थेल्मिक, सेकंड मैक्सिलरी, थर्ड मैंडिबुलर। तो ये जो मैक्सिलरी रहता है ये मिडिल क्रेनियल फोसा से एंट्री लेगा टेरिगो पैलेटाइन फोसा में। ठीक, उसके बाद एक ब्रांच देगा, गैंग्लियन रहता है टेरिगो पैलेटाइन फोसा में, गैंग्लियन, टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन। और उसके बाद जब ये वहां से एग्जिट मारेगा ऑर्बिटल फिशर की तरफ, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर की तरफ, तो वहां से इसको बोल देंगे इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। ठीक है, तो मैक्सिलरी का एक तरह से टर्मिनेटिंग ब्रांच हो गया इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। ओके, तो इस फोसा से रिलेटेड एक चीज अपने को पता चल गई कि मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व इससे क्रॉस करता है। Then pterygoid plates and the pyramidal process of the palatine bones fuse to form the inferior aspect. ठीक है, देख लिया अपन ने। Greater wing of sphenoid bone and the middle cranial fossa forms the superior boundary. ये भी देख लिया अपन ने। स्पिनोइड बोन जो है वो इसी का पार्ट है, मिडिल क्रेनियल फोसा का, ये भी अपन ने देखा था उसमें। Medial portion of PPF is composed of perpendicular plate of the palatine bone and medial pterygoid plate एंड द स्पिनोइड बोन। तो मोस्टली तो पैलेटाइन का ही रहता है, जो ब्लू कलर में था ना, वो भी अपन ने देख लिया। नाउ स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन विद इन द मीडियल वॉल ऑफ द पीपीएफ ट्रांसमिट्स द स्पिनोपैलेटाइन नर्व। नाम से ही पता चल जाएगा अपने को, मीडियल में जो अपन ने फोरामेन पढ़ा था स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन, नाम ही स्पिनोपैलेटाइन है, तो स्पिनोपैलेटाइन नर्व और स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी ब्रांच किसकी है? आईएमए की, इनटू द नेजल कैविटी। अभी उसके मीडियल तो नेजल कैविटी आएगा। ठीक है, तो वो नेजल कैविटी में एंट्री लेती है वहां से। कौन कौन? स्पिनोपैलेटाइन नर्व, स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी। तो अभी तक न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? टेरिगो पैलेटाइन फोसा में मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ ट्राइजेमाइनल, देन स्पिनोपैलेटाइन नर्व एंड स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी, 3 चीज हो गई। पीपीएफ कम्युनिकेट्स लेटरली विद द आईटीएफ, ये तो अपने को पता ही है। फिशर जो था अपना टेरिगो मैक्सिलरी फिशर, तो आईटीएफ से अपन जा रहे थे उधर। एंड द टेरिगो मैक्सिलरी फिशर, ये देख लिया अपन ने। द कंटेंट्स ऑफ पीपीएफ कैन बी जनरली क्लासिफाइड एज एंटीरियर वेस्कुलर स्पेस हाउसिंग द टर्मिनेशन ऑफ आईएमए। एंटीरियरली जो रहता है वो आईएमए का टर्मिनेशन रहता है, जिससे स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी और ये सब निकलेंगी। ओके, और पोस्टीरियरली रहता है न्यूरल स्पेस, उसमें होता है मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व, टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन एंड स्पिनोपैलेटाइन नर्व। ठीक है,
Principal branches of the pterygopalatine ganglion are median nerve, maxillary nerve, and the lesser and greater palatine nerve. ठीक है, कौन कौन सी ब्रांच है टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन की? मीडियन नर्व, मैक्सिलरी नर्व, लेसर एंड ग्रेटर पैलेटाइन नर्व। तो ये इतनी न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर इससे रिलेटेड होगी। ओके, वापस एक बार देख लेते हैं। ये टेरिगोइड प्लेट, ये सब स्पिनोइड का पार्ट है, ब्लू वाला टेरिगोइड प्लेट, ग्रेटर विंग। तो ये स्पिनोइड जो भी हो मिडिल क्रेनियल फोसा रहता है। ये बन गया टेरिगोमैक्सिलरी फिशर, टेरिगोमैक्सिलरी फिशर। ये यहाँ से अपन ने एंट्री ली तो पीछे इसके मैक्सिला के पीछे रहेगा फोसा, टेरिगोपैलेटाइन फोसा, एंड फिर मीडियल वॉल में स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन रहेगा, उधर से नेजल कैविटी में एंट्री ले लेगी नर्व और वेसल। कौन सी? स्पिनोपैलेटाइन नर्व, स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी। ठीक है, ये वापस वही डायग्राम। तो इसके कंटेंट अपन फिर डिवाइड कर लेते हैं। एंटीरियरली दो में डिवाइड रहता है। एंटीरियरली तो आईएमए का टर्मिनेशन रहता है, पोस्टीरियरली रहते हैं टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, जिसकी ब्रांचेज रहती है मीडियल नर्व, मैक्सिलरी नर्व, ठीक है ना, लेसर, ग्रेटर पैलेटाइन। और उसके साथ साथ मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनल आता है, जो इधर से जाएगा, मतलब उसमें एंट्री लेके फिर इधर जब आएगा इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर के पास, तो वहां से उसको इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व बोल देंगे। ओके, ये सब उसके कंटेंट हो गए। अभी तीन जो अपन पढ़ते हैं, तो ये ब्लू जो है एंटीरियर, ये है एंटीरियर, दिस इज एंटीरियर फोसा। ठीक है, तो इसी का स्कल बेस नीचे बनेगा, एंटीरियर स्कल बेस। ये जो मिडल है पिंक एंड येलो दोनों, ये पूरा इतना। इस फोसा का इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ स्कल बेस और इट इज जस्ट डिमार्केशन इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्कल बेस? फोसा अपन ऊपर से देख रहे हैं ब्रेन वाली साइड से, ठीक है, नीचे से बोलेंगे बेस बोल देंगे। इंपॉर्टेंस है कि इधर न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर रहते हैं सारे, फोरामेन वगैरह है ना, तो इनमें एंटर कर गया तो अनरिसेक्टेबल हो जाएगा ट्यूमर। स्कल बेस पढ़ते हैं ना अपन, T4B, तो T4B हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये अपना मिडल फोसा और ये पोस्टीरियर फोसा। तो इनसे रिलेटेड देख लो, मोस्टली जो भी दिख रहे हैं वो किस में दिख रहे हैं? मिडल फोसा में दिख रहे हैं, है ना। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, फोरामेन रोटंडम, फोरामेन ओवेल, फोरामेन जुगुलर। मोस्ट ऑफ जुगुलर पोस्टीरियर में रहता है, बाकी मिडल में। इसका और अच्छा डायग्राम देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये ऑप्टिक कैनाल में ऑप्टिक नर्व रहेगा, बताइए, या इससे ऊपर से शुरू कर दो। क्रिवरी फ्रॉम प्लेट है ये, इसमें ओल्फैक्टरी नर्व रहता है। ठीक है, तो मोस्टली इसके ट्यूमर के लिए अपने को एंटीरियर फोसा क्रेनियल अप्रोच चाहिए, एक इसके थ्रू जो भी ट्यूमर जा रहे हैं उनके लिए। ऑप्टिक कैनाल रहता है, फिर ये पीछे ऑप्टिक कैनाल से जाती है ऑप्टिक नर्व, उसके पीछे फिर रहता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर है ना, इंफीरियर नहीं है, सुपीरियर। सुपीरियर से कौन जाता है? ओक्यूलोमोटर नर्व, मतलब 3, 4, 5, 6, ये याद रखना है, 3, 4, 5, 6 सुपीरियर ऑर्बिटल नर्व से। ठीक है ना। 5 का कौन सा? डेफिनेटली ऑल्फैक्टरी 1 है क्या? हाँ, और ऑप्टिक 2 है। ठीक है, ठीक है। फिर आता है फोरामेन रोटंडम। फोरामेन रोटंडम से कौन जाता है? पढ़ा भी था अपन ने, मैक्सिलरी नर्व। यस। और फोरामेन रोटंडम कौन से फोसा से रिलेटेड है? मिडिल क्रेनियल है, मिडिल क्रेनियल स्फिनॉइड फोरामेन। रोटोमैक्स कहते थे ना इसको, रोटंडम मैक्सिलरी रोटोमैक्स। हम लोग तो मेल बोलते थे, रोटंडम से मेल जाता है। नहीं, वो ओवेल है, ओवेल से मेल जाता है ये। और रोटंडम से क्या जाता है? मैक्सिलरी। और पढ़ा ना अपने और भी कुछ नहीं जाता। अपने को मेनली नर्व से ही पूछते हैं, तो ज्यादा वो एमिसरी वेन वो सब लिख सकते हो। अच्छा, ज्यादा याद करेंगे तो भूल जाएंगे फिर। नर्व से रिलेटेड ही ज्यादा पूछेंगे अपने को, ठीक है ना। मैक्सिलरी नर्व। और फोरामेन ओवेल का आप बोल ही रहे हो, मेल वाला वो ब्रांच, वो एक ट्रिक होता है, मेल। रोटंडम से तो मिडिल क्रेनियल फोसा शुरू हो गया ना, तो सुपीरियर, ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा में तो ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक और ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर ही आएगा। हाँ, मैं वो यही रहेंगे। ठीक है।
ये अपन पढ़ रहे हैं अपन को क्योंकि ये दो सर अप्रोचेस होते हैं, एक लेटरल अप्रोच, एक एंटीरियर स्कल बेस और एक लेटरल स्कल बेस, दो होते हैं। लेटरल स्कल बेस मतलब नॉर्मली जो अपने यहाँ करते हैं वो लेटरल स्कल बेस सर्जरी करते हैं ना, इंटीरियर कहाँ करते हैं, टेम्पोरल बोन को खोलते हैं ना अपने यहाँ। टेम्पोरल वो तो ऑडिटरी कैनाल वाले हैं उनमें। तो मतलब लेटरल स्कल बेस सर्जरी हो गया। वो तो अपना एंटीरियर डिफरेंट है। ईयर वाले में, हाँ ठीक है। फोरामेन ओवल के मेल वाले ही हो गए। तो एम से तो क्या हो जाएगा बताओ? मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। ए से एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी, एल से लेसर पेट्रोजल नर्व, ई से इमेजरी वेन। तो मैन तो अपने को मैंडिबुलर की वजह से ही पूछेंगे, फोरामेन ओवल। ओके, ये हो गया। इसके पीछे वाले अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। हाइपोग्लोसल देखना है तो देख लो, हाइपोग्लोसल इधर रहता है पोस्टीरियर में। जुगुलर फोरामेन में जुगुलर कॉम्प्लेक्स जाता है, वेसोवेगल एसेसरी। और अपन को 8th का पता ही है, वो अकाउस्टिक मीएटिस में तो भैया फेशियल नर्व और कॉक्लियर नर्व ही जाएगी। ये सब अब नहीं भूलेंगे, बस ये मेल और ये रोटंडम वाले प्रॉब्लम करते हैं। मैक्सिलरी और मैंडिबुलर में कंफ्यूजन होता है, पर इसने रोटोमैक्स बता के अच्छा कर दिया। वो पेन आता था शायद रोटोमैक्स एक। हाँ पेन नहीं आता था रोटोमैक्स वाला। रोटंडम में मैक्सिलरी है, ओवेल में मेल में मैंडिबुलर है। ओके, अब इसमें भी देखते हैं अपन। तो स्पिनोइड बोन के जो पार्ट है ना, मोस्टली उसी में है फोरामेन। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर भी उससे रिलेटेड, मतलब जंक्शन पे दोनों के, एंटीरियर और मिडल के। तो अभी ये किस में बोलेंगे पता नहीं, क्योंकि ये पार्ट तो है नहीं, तो मे भी मिडल में बोलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। सुपीरियर ऑर्बिटल, ठीक है। फोरामेन, रोटंडम, ओवेल एंड स्पाइनोसम, ये तीनों सब मतलब मोस्ट ऑफ स्पिनोइड बोन से रिलेटेड है, और स्पिनोइड बोन मिडिल क्रेनियल फोसा से रिलेटेड है, ठीक है। एक इनका सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं, तो SOL से याद रखता हूं मैं तो। SOL स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन होते हैं ना, SOL लेटरल टू मीडियल, ठीक है। ये स्पाइनोसम, ओवेल एंड रोटंडम। स्पाइनो, ये ओवेल किसके पास है अपना? टेरिगोइड प्लेट के पास। तो इधर कई बार अपन जब टेरिगोइड प्लेट निकालते हैं ना सर्जरी करते करते, तो इसमें इंजरी का रिस्क रहता है फोरामेन ओवेल के पास। ओके, अब पढ़ते हैं अप्रोच। बाउंड्री देख लेते हैं एक बार। एंटीरियर स्कल बेस बाउंड्रीज इंक्लूड मीडियल बॉर्डर दैट इज फाउंड बाय द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, lateral border that is formed by the orbital plates of the frontal bone, and posterior border that is formed by the plenum sphenoidal and lesser wings of the sphenoid, है ना। तो ये स्पिनोइड मोस्ट ऑफ मिडिल क्रेनियल फोसा का ही पार्ट है, बट बाउंड्री पे है तो आएगा ही आएगा इधर डिमार्केशन में, है ना। Cribriform plate is traversed by multiple olfactory nerves that exited from the olfactory mucosa to the olfactory bulb. ये अपन ने देख लिया। A bony fissure between the lesser and greater sphenoid wings, superior orbital fissure gives passage to 3, 4, 5, 6. ये अपन ने देख लिया। Superior and laterally lies the optic canal, वो भी अपन ने देख लिया। Both the superior orbital fissure and the optic canal open in the middle cranial. Okay, यहाँ आ गया ना। तो ये superior orbital fissure is middle cranial fossa, ठीक है। Middle cranial fossa and are most commonly affected by central skull base lesions. Okay, अब अप्रोच क्या रहेगी इसकी? एंटीरियर स्कल बेस की दो अप्रोच है। दो नहीं और भी है मॉडिफाइड। मैन ओपन सर्जरी की दो रहती थी पहले, ट्रांसफेशियल अप्रोच एंड क्रेनियोफेशियल रिसेक्शन। ट्रांसफेशियल में तो अपने को पता है वेबर फर्गुसन, डेफेनबर्ग एक्सटेंशन एंड लेटरल राइनोटमी, 3 इंसिजन रहते हैं। क्रेनियोफेशियल में क्या होता है? इट इज ऐसा, अपन क्रेनियम मतलब ब्रेन में उसमें भी एंटर करेंगे, हेड में भी और फेस से भी जाएंगे, दोनों तरफ से जाएंगे, डुअल अप्रोच है। तो ये क्या है? कंबाइंड ट्रांसफेशियल एंड ट्रांसक्रेनियल अप्रोच है, ठीक है। फर्स्ट वी डू द लेटरल राइनोटमी एंड डू मीडियल मैक्सिलेक्टमी। मीडियल मैक्सिलेक्टमी मतलब मैक्सिला का मीडियल वॉल या नोज का लेटरल वॉल बोल दो, मीडियल को निकालेंगे एंड स्पिनोएथमोइडेक्टमी करेंगे साथ में। तो उससे अपने को एक्सेस मिल जाएगा इधर से, फेस की साइड से। फ्रंटल रिसेस, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट एंड लमाइना पेपरेशिया बाइलेट्रियल एक्सपोज्ड, ये दोनों ये सब एक्सपोज हो जाएंगे वो हटा देने से।
तो अपन जस्ट फॉर एक्सपोजर ये कर रहे हैं, मीडियल मैक्सिलेक्टमी। कोरोनल फ्लैप इज रेज्ड एंड क्रेनियोटमी डन। ठीक है, तो क्रेनियोटमी कहाँ से करेंगे? इंक्लूड्स फ्रंटल बोन फ्रॉम द लेवल ऑफ ग्लेबुला, आंखों के बीच में जो ग्लेबुला रहता है, ठीक है, ये नाक ग्लेबुला, यहां से कहां तक? रफली 4 to 5 सेंटीमीटर अबव द स्कल बेस सुपीरियरली। तो यहां से 4 or 5 सेंटीमीटर ले लो, ये आ गया। ठीक है, तो इतना, ठीक है। द लेटरल बॉर्डर कहां तक रहेगा? यहां तक, मिड, ये थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, मिड प्यूपिलरी, ठीक है ना, मिड प्यूपिलरी लाइन तक रहेगा, यहां तक लेटरल ग्लेबुला, 4 to 5 सेंटीमीटर क्रेनियल, ये पूरा अपन क्रेनियोटमी करेंगे और अंदर घुस जाएंगे दिमाग के। ठीक है, लेटरल बॉर्डर्स ऑफ द क्रेनियोटमी आर मिड प्यूपिल हो गया। नेक्स्ट द ड्यूरा इज इंसाइज्ड, अगर नीडेड है तो ड्यूरा करेंगे, ड्यूरा इन्वॉल्व है तो नहीं है तो बाहर से भी जा सकते हैं। फ्रंटल लोब्स आर रिट्रैक्टेड सुपीरियरली एंड एक्सपोजिंग द एंटीरियर स्कल बेस फ्रॉम अबव। तो अपन को ऊपर से भी एक्सपोजर मिल गया और नीचे से भी एक्सपोजर मिल गया, तो एकदम ट्यूमर दिख रहा है पूरा दोनों तरफ से। Now final stage of the operation includes resection of the tumor, which extends through the cribriform plate in a combined from below and above approach. Use of craniofacial surgery has been documented for variety of malignant and benign tumors. Two major advantages: broad exposure to the anterior skull base from above and below, providing excellent access to the orbital, sphenoethmoidal and paranasal cavities. ठीक है ना, एक्सपोजर तो बढ़िया मिलना ही मिलना है। तो ये अपन देख लेते हैं, ये ग्लेबुला है इधर और ये 4 to 5 सेंटीमीटर ऊपर इधर, फिर मिड प्यूपिलरी तक इधर आके ये पूरा हटा दिया। फिर इन्होंने ड्यूरा भी लिया, ब्रेन एक्सपोज, ऊपर से एक्सपोजर आ गया पूरा, ठीक है, और इधर से एक्सपोजर ले लिया, तो ये पूरा ट्यूमर दिखेगा ऊपर से अपने को ऐसा। ठीक है, अब इधर से मीडियल मैक्सिलेक्टमी करके घुस गए तो ये फेशियल ट्रांसफेशियल भी हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे तो पूरा ट्यूमर आराम से निकल जाएगा। ये मीडियल मैक्सिलेक्टमी के पार्ट है, मीडियल वॉल ऑफ मैक्सिला रहेगा और साइनस, इनवॉल्व साइनस अगर एक्सपोजर के लिए निकालने हैं, इंक्लूडिंग मीडियल वॉल ऑफ आई बॉल निकाल सकते हैं अगर जरूरत है तो। ठीक है, तो इस अप्रोच से क्या फायदा है अपने को? इंट्राड्यूरल as well as extradural tumors can be performed in single procedure that allows precise reconstruction of the dura. अगर ड्यूरा इन्वॉल्व है तो रिकंस्ट्रक्शन भी ओपन है, आराम से कर सकते हैं। Now despite the technical reproducibility, this procedure still involves a high risk of post-operative complications. ठीक है ना, ब्रेन को हैंडल कर रहे हैं तो वो सारा इश्यू रहेगा। Main limitation of this approach is need for frontal lobe retraction, which may lead to encephalomalacia, brain edema, subdural bleeding, especially in the elderly population, and presence of cosmetic inconvenience because of the transfacial skin incision. ठीक है, ये इसका लिमिटेशन हो गया। तो एक अप्रोच आ गई, फिर सब क्रेनियल अप्रोच। ठीक है, तो ट्रांसफेशियल, क्रेनियोफेशियल और अब तीसरा पढ़ रहे हैं सब क्रेनियल अप्रोच। सब क्रेनियल अप्रोच क्या है? इसमें इन्होंने बोला कि अपने को दोनों साइड से जाने की जरूरत नहीं है, सिंगल स्टेज में करेंगे। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ एक्सपोजर विद द सबक्रेनियल अप्रोच इंक्लूड्स द फ्रंटल साइनस एंटीरियरली, क्लाइवस तक, फ्रंटल लोब सुपीरियरली एंड द पैरानेजल साइनसेस बायलैटरली। ठीक है, एंड लैटरली द बाउंड्रीज ऑफ दिस अप्रोच आर बोथ सुपीरियर ऑर्बिटल वॉल्स। तो इसको पढ़ने से पहले डायग्राम दिखा देता हूँ, ये पूरा निकाल लेंगे चौकटा। ठीक है ना, इधर से नाक पूरा निकाल लेंगे, निकाल लिया तो सारा एंटीरियर जो स्कल बेस है वो अंदर से भी एक्सपोज हो गया और बाहर से तो हो ही रहा है इधर से। तो दोनों अप्रोच एक ही स्टेज में मिल गया। यहाँ से ये काटा इन्होंने, ये काटा, ये काटा और इसको पूरा निकाल लिया इधर से। ठीक, ये निकाल लिया, से खोल लिया, नाक ये निकाल लिया तो पूरा ऊपर से भी अपने को मिल गया क्रेनियल साइड से और फ्रंटल फेस, वही बीच से ग्लैबुला ही खोल मारा उन्होंने। हाँ, तो कि 2 बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार में कर डालो। पर उससे फिर ये जोड़ेंगे कैसे? वो नाक तो बिल्कुल धंस जाएगी। वो प्लेट लगाएंगे, वो बोन वापस लगाएंगे, चिंगम लगाएंगे। उसका वही कॉम्प्लिकेशन रहता है कि बोन नेक्रोज हो जाती है कई बार आरटीसी। हाँ।
Okay, so subcranial approach has major advantages. क्या? Affords direct exposure of anterior skull base from the anterior to posterior instead from above and below. Anterior to posterior हो ना expose इसमें, इधर से खोल दिया तो इधर से इधर ये पूरा एंट्री अपने को दिखेगा. उसमें अपन ऊपर नीचे आ रहे थे. ओके, कहाँ गया? इसमें एनोस्मिया होगा क्या पेशेंट को? है? एनोस्मिया होगा क्या पेशेंट को? वो तो सारा मामला ही निकल गया था. वो नहीं है. It allows simultaneous intradural extradural tumor removal for anterior to posterior. It does not require facial incision. ठीक है. Minimal frontal lobe manipulation. Okay. Subcranial approach involves a coronal incision and osteotomy of the nasofrontal orbital bone segment. Naso नाक निकाल रहे हैं, frontal bone का और orbital का, है ना? Medial orbital wall ले सकते हैं. ये पूरा segment निकाल देते हैं, तो उससे access मिलेगा अपने को. Main disadvantage क्या है? Bone osteonecrosis post RT in case of malignant tumors. RT देंगे तो bone जा सकता है vascularity compromise होने की वजह से. ठीक है. अभी recon क्या करेंगे? अगर लो फ्लो आईएसएफ है, लो फ्लो इंट्राऑपरेटिव सीएसएफ लीक है, तो स्कल बेस रिकंस्ट्रक्शन विद मल्टी लेयर्ड फ्री ग्राफ्ट्स, कुछ भी पैच लगा सकते हैं अपन. ठीक है ना? फैट का लगा दो या कुछ टेंडन फेशिया, कहीं फेशिया लेके लगा दो, या सिंथेटिक मटेरियल का पैच भी लगा सकते हैं. ठीक है ना? आउटकम सिमिलर है इनका. हाई फ्लो में अपने को क्या करना पड़ेगा? वेस्कुलर फ्लैप ही देना पड़ेगा, पेडिकल्ड वेस्कुलर फ्लैप. अभी लो फ्लो क्या होता है और हाई फ्लो क्या होता है? लो फ्लो वो होता है जो ऐसा प्रेशर बढ़ने पे ड्रॉप बाय ड्रॉप सीएसएफ लीक होता है, रूटीनली मतलब रेगुलरली नहीं होता. जबकि हाई फ्लो में कंटिन्यूअसली सीएसएफ लीक होता रहता है. ठीक. तो अगर हाई फ्लो रहेगा तो वेस्कुलाइज पेडिकल फ्लैप देना ही पड़ेगा. रिसेंट एडवांसेस हैज लेड टू एंडोस्कोपिक एंड एंडोनेजल अप्रोचेस. तो तीन अप्रोच तो नहीं, एक ट्रांसफेशियल, क्रेनियोफेशियल. ट्रांसफेशियल तो बेसिकली इंसिजन ही था, दोनों मिलके ही थे ये, है ना? सबक्रेनियल एंड फोर्थ इज कंबाइंड एंडोस्कोपिक एंडोनेजल, कंबाइंड कर देंगे. ठीक है. पर इनका यूज जो एंडोनेजल और एंडोस्कोपिक है ना, उनका यूज कैडिस ए एंड बी तक ही लिमिटेड है. कादिश ए एंड बी. ठीक है. कैडिश क्लासिफिकेशन लिखी है क्या आपने? कैडिश क्लासिफिकेशन. This is modified Kaddish staging of esthesioneuroblastoma. ठीक है. तो A और B क्या है? A is tumors confined to the nasal cavity and B is confined to the nasal cavity and paranasal sinus. तो ये एक्सपोजर तो अपने को मिल रहा है इन अप्रोच से एंडोनेजल के साथ, तो अपन कर सकते हैं. C क्या है? Extended beyond nasal cavity and sinuses including the cribriform plate, base of skull and orbit intracranial cavity. तो फिर वो एंडोस्कोपिक के बस की बात नहीं है, फिर ओपन ही आना पड़ेगा. डी विद मेटास्टेसिस टू सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एंड डिस्टेंट साइट्स. तो ये तो दोनों की बस की बात नहीं है. ठीक है. ए और बी एंडोस्कोपिक अटेम्प्ट कर सकते हैं अपन. कैसे करते हैं? तो इसमें भी वो ऊपर से खोला, पूरा ढक्कन हटा दिया. ठीक है. इधर से गए, ये अप्रोच मिल गया यहाँ तक, तो यहाँ से पूरा रिसेक्ट कर लिया और इधर से एंडोस्कोप घुसा दिया नाक से, इधर से रिसेक्ट कर लिया, फिर ट्यूमर निकल जाएगा पूरा बाहर. ठीक है. तो इसमें फेशियल ट्रांसफेशियल स्किन की जरूरत नहीं है ये इंसिजन की. ओके, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. टेरिगोपेलेटाइन फोसा, ये अपना टेरिगोपेलेटाइन फोसा. एंट्री कहाँ से? तो ये आईटीएफ रहता ही है. दिस इज टेरिगोमैक्सिलरी फिशर. फिशर के थ्रू आ गए टेरिगोपेलेटाइन फोसा में. फोसा के मीडियल वॉल में रहता है स्पिनोपेलेटाइन फोरामेन, उससे जाती है स्पिनोपेलेटाइन नर्व आर्टरी. फोसा में रहता है फोरामेन रोटंडम. फोरामेन रोटंडम से कौन सी नर्व जाती है? मैक्स. कौन सी? रोटोमैक्स, मैक्सिलरी. या. सो नाउ बाउंड्रीज ऑफ द टेरिगोपेलेटाइन फोसा. तो अब बताएगा इस्पाक, मैं पूछूंगा. ओके. एंटीरियर बाउंड्री कैसे? ऐसी रखो, मैं बताता हूँ. तभी रखा है मैंने. ओके. सो दिस इज टेरिगोपेलेटाइन फोसा. इसका अपने को मतलब 3D व्यू देख के ध्यान रखना है. लेटरली कौन होगा? डेफिनेटली फिशर होगा, टेरिगोमैक्सिलरी फिशर. सुपीरियरली कौन होगा? ये कौन है? ये ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनोइड. पोस्टीरियरली कौन होगा? ये कौन है? टेरिगोइड प्रोसेस.
मीडियली कौन होगा? पैलेटाइन बोन का परपेंडिकुलर पार्ट, जो कि ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला, ठीक, ये रहेगा। इंफीरियरली कौन रहेगा? तो ये रहेगा, पिरामिडल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन, ठीक, ये हो गया। अब ये अपन ने स्कल बेस पढ़े थे। मोस्ट ऑफ द फोरामेन जो है अपने वो आते हैं मिडिल क्रेनियल फोसा में, ठीक है। अपने एंटीरियर में दो ही चीज बची फिर, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट और ऑप्टिक कैनाल। फोरामेन रोटंडम पढ़ लिया। ओवल में स्ट्रक्चर्स है मेल, नर्व याद रखनी है, मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। ये हो गया वापस वही, इनका सीक्वेंस रहता है लेटरल टू मीडियल, SOL, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। प्लेट के पास में रहता है फोरामेन ओवल, टेरिगोइड प्लेट के पास, ठीक है। तो ITF क्लियरेंस में डैमेज हो सकता है, या ऊपर से अपन मैक्सिलेक्टमी कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, या टोटल या एल्वियोलेक्टमी में लग रहा है, तो इधर इंजरी का रिस्क रहेगा फोरामेन ओवल की, है ना। और फोरामेन ओवल में एक एमएसरी वेन भी होती है, अपने को पता है, एमएसरी वेन, इनकी ब्लीडिंग बहुत गंदी होती है, ठीक है। तो इसमें बाइपोल लगा के जला दो, या तो तभी जाके रुकेगी, या फिर बोन वैक्स घुसा दो। फिर बाउंड्रीज पढ़ ली अपन ने, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, ये सब देख लिया अपन ने। अप्रोच पे आ जाते हैं। ट्रांसफेशियल अप्रोच, क्रेनियोफेशियल रिसेक्शन। ट्रांसफेशियल के इंसिजन पता ही अपने को, वेबर फर्गुसन, डेफेनबैक एंड लेटरल राइनोटमी। क्रेनियोफेशियल रिसेक्शन में क्या करते हैं? क्रेनियल एक पार्ट, दो कंपोनेंट रहेंगे, एक क्रेनियल, दूसरा फेशियल, ट्रांसफेशियल। क्रेनियल में क्रेनियोटमी करेंगे, कहां से क्लेबुला 4 to 5 सेंटीमीटर सुपीरियर, लेटरली मिड प्यूपिलरी लाइन, पूरा ढक्कन हटाएंगे ऊपर से अंदर, ठीक है ना। और इधर से मीडियल मैक्सिलेक्टमी करके यहाँ भी एक्सपोज ट्यूमर को बढ़िया काट के निकाल के रख देंगे, ठीक है। तो इसमें वही मैनिपुलेशन, ब्रेन इडिमा, ये सब रिस्क रहता है। देन मीडियल मैक्सिलेक्टमी पता है अपने को। फिर आता है सब क्रेनियल अप्रोच। सब क्रेनियल अप्रोच वाले बोले एक ही स्टेज में करो, दो स्टेज क्यों कर रहे हो? ये पूरा नाक हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या क्या हटाते हैं? नेजो ऑर्बिटो फ्रंटल, नेजल बोन, ऑर्बिट का मीडियल वॉल एंड फ्रंटल बोन का पार्ट, ये पूरा हटा देते हैं। हटा के एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सपोजर मिल जाएगा। ये अपने बीच में क्या है? जालीदार स्ट्रक्चर, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। क्या है स्टूडेंट्स? क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, या गुड। इसके बाद ये आ गया अपना मॉडिफाइड कादी स्टेजिंग ऑफ एस्थेसियो न्यूरोब्लास्टोमा। किसका होता है? एस्थेसियो न्यूरोब्लास्टोमा का, है ना। ए और बी में एंडोस्कोपिक अप्रोच ले सकते हैं, सी में ओपन, डी में कुछ नहीं कर सकते। एंडोस्कोपिक अप्रोच पता है अपने को। इसी के साथ समाप्त। कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रो इन्फ्लेमेटरी पाथवे लीड करते हैं, जो क्रॉनिकली चलता रहेगा? एक है स्मोकिंग, डाइट, अगर कोई कुछ डाइटरी फैक्टर्स है जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, इन्फेक्शन, ओबेसिटी, और ठीक है, हाँ, पोल्यूशन एंड रेडिएशन, ठीक है। इसका जब क्रॉनिक एक्सपोजर होगा इट कैन लीड टू कैंसर, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है? तो बेसिकली ये लोग ये कहते हैं कि कुछ मीडिएटर्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के, जो कि हमें पता ही है, TNF सबसे इम्पोर्टेंट, IL-1, 6, 18, 7, 8 और 17, और VEGF, ठीक है। और ये जो है, ये वाले मीडिएटर्स जो हैं, ये अल्टीमेटली क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को कोड करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कौन से? NF कापा बीटा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, STAT3, AP1, बीटा कैटनिन, HIF, ठीक है। इसी को याद रखना, यही मीडिएटर और इन्फ्लेमेशन इन्हीं प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स को बनाएंगे, ठीक है। अब कार्सिनोजेनेसिस में आ जाओ। कार्सिनोजेनेसिस में हम क्या पढ़ेंगे? इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन में क्या चीजें लगती हैं? दो चीजें लगती है, एक सेल्स और एक साइटोकाइन्स। साइटोकाइन्स हमने पढ़ी लिए, लेफ्ट साइड वाले मीडिएटर्स। तो सेल्स और ये मीडिएटर्स मिल के क्या करेंगे? हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनाएंगे। कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स? NF कापा बीटा, STAT3, ठीक है। फिर पाथवे एक्टिवेट हो गया, इन लोगों ने, इन इन्फ्लेमेटरी ट्रांसक्रिप्टिंग फैक्टर्स ने शुरू करके इन्फ्लेमेशन शुरू कर दिया। जब इन्फ्लेमेशन शुरू होता है तो ये इन्फ्लेमेशन कैसे ट्यूमर की इनिशिएशन करता है, प्रोग्रेशन करता है और मेटास्टेसिस करता है। इनिशिएट कैसे करेगा? नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर सेल्स बना के, ठीक है। सो सेल ट्रांसफॉर्मेशन,
प्रोग्रेशन कैसे करेगा? सेल जो म्यूटेटेड है उसको प्रोलिफरेट करके, उसको सर्वाइव करके, ठीक है, इट इन्वेड्स, एंजियोजेनेसिस होता है और अल्टीमेटली मेटास्टेसाइज, वही हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर है, ठीक है। फिर यही हमने बोला कि इन्फ्लेमेशन जब सेट हुआ था, ये इन्फ्लेमेशन क्या कर रहा था? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइन्स की वजह से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर शुरू हो रहे थे एंड वो सेल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है। इसके अलावा ऊपर देखोगे तो वो सेल्स में और क्या होता है, कुछ सेल्स एक्टिवेट होते हैं CD8 सेल्स, और ये CD8 सेल्स जो है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की रीमॉडलिंग करके फाइब्रोसिस करके भी नियोप्लेसिया कर रहा है, ठीक है। सो देयर आर 2 पाथवेज, पहला ये ऊपर वाला जो हमने पढ़ा, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को मॉडिफाई करके एंजियोजेनेसिस एंड फाइब्रोसिस करके भी नियोप्लेसिया कर रहा है, ये था पाथवे। अब पाथवे खत्म हो गया, हमने पढ़ा कि ये इनिशिएशन, प्रोग्रेशन एंड मेटास्टेसिस तीनों करता है, ठीक है। नाउ रोल ऑफ इन्फ्लेमेशन इन इनिशिएशन एंड प्रोग्रेशन जो हमने पढ़ा था, तो इनिशिएशन हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मेशन करता है नॉर्मल सेल का कैंसर सेल में। प्रोग्रेशन कैसे कर रहा था? उस कैंसर सेल का सर्वाइवल एंड प्रोलिफरेशन एंड देन मेटास्टेसिस था। तो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो कोई भी स्टिमुलस आया जैसे कि हेवी मेटल, सिगरेट स्मोकिंग और आर्सेनिक, उसने अल्टीमेटली क्या करना था? वही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को कोड करना था साइटोकाइन्स के साथ मिलके, बनाना था NF काफा बीटा, HIF और STAT3, ठीक है। और कौन से इंटरल्यूकिन सिक्रिएट हो रहे थे? IL-6, IL-8। ये सब क्या करते हैं? सेल को ट्रांसफर करते हैं। वही जो हमने ऊपर पढ़ा वो हम सेम पढ़ रहे हैं थोड़ा डिटेल में, ठीक है। फिर प्रोग्रेशन कैसा हो रहा था? उसी सेल को सर्वाइव करके और प्रोलिफरेट करके, ठीक है। तो जैसे जैसे पेशेंट की इन्फ्लेमेशन बढ़ी, उसका सर्वाइवल पुअर होता गया, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि जिस पेशेंट को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहती है वो पेशेंट कैंसर डेवलप कर जाता है और उसका जो है ट्यूमर प्रोग्रेस कर जाता है। तो हम इसी लेवल पे कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। ये हमने पढ़ा है कि CRP, एल्ब्यूमिन, ग्लासगो प्रोग्नोस्टिक स्कोर, न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशो और ब्लड IL-4, IL-6, IL-8 लेवल्स, ये सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, ठीक है। अगर इनका लेवल बढ़ा हुआ है इसका मतलब आपका आउटकम पुअर है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? इनिशिएशन करा, प्रोग्रेशन करा। प्रोग्रेशन के 2 पार्ट, सर्वाइवल एंड प्रोलिफरेशन। सर्वाइवल हमने पढ़ लिया, अब प्रोलिफरेशन, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि एविडेंस है कि इन्फ्लेमेशन कैन लीड टू प्रोलिफरेशन ऑफ वेरियस जो प्रो कार्सिनोजेनिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो। तो 2 प्रो कार्सिनोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हमने कौन से पढ़े? H. pylori and hepatitis, ठीक है। सो दे प्रोड्यूस COX-2 and ERG, ठीक है। So these are inflammatory markers. These two produced by these carcinogens are also inflammatory markers. तो ये सारे inflammatory markers बढ़ेंगे, वो भी proliferation के markers हैं। COX-2 and ERG2 they are also proliferation के markers, ठीक है। फिर initiation, progression, last में क्या था? Metastasis. Metastasis कैसे हो रहा था? By invasion and angiogenesis. Invasion कैसे है? वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को पिघाल देता है, कैसे? बाय MMP9, ठीक है। मेटालिक प्रोटीनेजेस जो होते हैं 9, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को सॉल्युबलाइज कर देते हैं। फिर HIF, कैथेप्सिन और COX-2 ये सब करके इन्वेड करता है एंड देन एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कार्सिनोजेनेसिस। दिस इज मीडिएटेड बाय कीमोकाइन, साइटोकाइन्स, ठीक है। सो इन्फ्लेमेशन इंड्यूस्ड एंजियोजेनेसिस जो हो रहा है, तो अभी तक हमने जितने फैक्टर ऊपर पढ़े ना, सबका इसमें नाम लिख दो। लास्ट वाला एंजियोजेनेसिस में ल्यूकोसाइट्स, TNF, जितने इंटरल्यूकिन पढ़े थे 1, 8, TGF बीटा, NF काबा बीटा, सब लिख दो। एंड लास्ट में क्या है? मेटास्टेसिस, ठीक है। मेटास्टेसिस कैसा होगा? तो ये बेसिकली ट्यूमर सेल है एक, ये ट्यूमर सेल बाहर भागना चाहता है, ठीक है। ये doesn't want to stay at one place, it wants to invade. So if it wants to invade, इसको पता है खुद invade नहीं कर सकता, ये क्या करेगा? ये सिग्नल्स भेजेगा, ठीक है। ये सिग्नल भेजेगा अपने आसपास के मोनोसाइट्स को कि तो कोई ऐसा वो बना, एजेंट बना जिसकी वजह से मैं बाहर जा सकूं, ठीक है। सो ट्यूमर एसोसिएटेड मोनोसाइट, ट्यूमर अपने साथ मोनोसाइट को बुलाता है, ठीक है, उसके साथ इंटरेक्शन करता है ताकि वो क्या बनाए? वो वर्सिकान नाम का एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन बनाए, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन जो है
इस माइलॉइड सेल को एक्टिवेट करके इंटरल्यूकिन 8 बनाएगा, जिसकी वजह से सेल मेटास्टेसाइज कर पाएगा। ठीक है, सो ये जो मोनोसाइट रिक्रूट हुए थे, ये मोनोसाइट रिक्रूट सेल खुद करता है, क्योंकि वो बाहर निकलना चाहता है, वो ट्यूमर खुद बाहर जाना चाहता है, इसलिए वो अपने साथ वाले मोनोसाइट को स्टिमुलेट करता है। किससे? कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर से। ठीक है, so the tumor calls monocyte by colony stimulating factor, tells him that I want to go out, please make a thing called versican, which is an extracellular protein with the help of which IL-8 will be made and I can set myself free. ठीक है, फिर मेटास्टेसिस हो गया। ठीक है, एंड और प्रो एंजियोजेनिक और मेटास्टेटिक फैक्टर्स बने, जैसे कि VGF, ICAM, E-selectin, वही MMP जिसकी वजह से बेसमेंट मेम्ब्रेन टूट रहा था ना। ठीक है, सो ये था सारा मैकेनिज्म। तो मोटा मोटा हमने करना क्या था, हमने साइटोकाइंस बनाने थे, इन्फ्लेमेशन ने साइटोकाइंस बनाने थे, साइटोकाइंस ने कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनाने थे। साइटोकाइंस कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे? IL-16 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, NF काबा बीटा और STAT3। ठीक है, करना इसमें 3 चीजें थी, इनिशिएशन, प्रोग्रेशन, मेटास्टेसिस। इनिशिएशन का क्या पार्ट्स हैं? इनिशिएशन इज बाय ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नॉर्मल सेल्स टू कैंसर सेल्स। ये कैसे हो रहा है? कोई भी स्टिमुलस आके साइटोकाइंस बना रहा है और वो साइटोकाइंस जो है आगे जाके सेल की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, सर्वाइवल एंड प्रोलिफरेशन। सर्वाइवल कैसे हो रहा है? ये कैंसर सेल्स जो इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं, सर्वाइवल प्रमोट कर रहे हैं। एंड प्रोलिफरेशन कैसे? बाय चेंजिंग दी इन्फ्लेमेटरी मिलियो पूरा बदल के, इट इज हेल्पिंग इन H. pylori एंड हेपेटाइटिस टू स्टे। फिर आगे फैलते कैसे हैं? बाय इन्वेजन एंड एंजियोजेनेसिस। इन्वेजन कैसे? MMP। एंजियोजेनेसिस कैसे? बाय यही सारे फैक्टर्स जो अभी तक लिखे सबका नाम लिख दो, उससे एंजियोजेनेसिस। एंड मेटास्टेसिस बाय फाइनली tumor wants to set himself free, so he will call the monocyte to make a thing called versican। ठीक है, अब ये हुआ मैकेनिज्म खत्म। ठीक है, अब हम करेंगे क्लिनिकल एप्लीकेशन। ये जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है इसको हम अपने लिए कैसे यूज कर सकते हैं? ठीक है, हम इसको डायग्नोसिस बनाने में यूज कर सकते हैं, हम इसको प्रोग्नोसिस की तरह यूज कर सकते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया ऊपर ही कि कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जब बढ़ जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि सेल का जो है प्रोग्नोसिस खराब है। हम उसको थेरेपी की तरह भी यूज कर सकते हैं कि हमें पता है कि जो जो मार्कर बढ़े हुए हैं, ऊपर हमने वेजेफ तो पढ़ लिया, उसको हम टारगेट करेंगे तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। ठीक है, और कंट्रोलिंग, प्रिवेंट करना, उनसे भी कंट्रोल वो कर सकते हैं। ठीक है, सो डायग्नोसिस जो है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स बढ़ते हैं तो इट कैन हेल्प इन डायग्नोसिस, बट ये भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं आया। प्रोग्नोसिस, इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़ेंगे तो इट इज एसोसिएटेड विद द बैड प्रोग्नोसिस। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, यही ऊपर प्रोग्नोस्टिक स्कोर एक पढ़ा था, G से क्या था? ग्लासगो नहीं, ग्लासगो प्रोग्नोस्टिक स्कोर। तो ग्लासगो प्रोग्नोस्टिक स्कोर अगर खराब है तो इट इज एसोसिएटेड विद अ पुअर सर्वाइवल, चांसेस ऑफ मेटास्टेसिस बढ़ जाएंगे। उसके साथ साथ पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस खराब है तो इट इज एसोसिएटेड विद इवन मोर पुअर प्रोग्नोसिस। ठीक है, CRP एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, वो पड़ा हुआ है, इट इज एसोसिएटेड विद पुअर प्रोग्नोसिस। और न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो, अगर ये न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो भी बढ़ी हुई है, इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद पुअर प्रोग्नोसिस। टारगेटेड थेरेपी, अगर कुछ मीडिएटर्स बढ़ते हैं जिनकी वजह से कैंसर बढ़ता है, उनको टारगेट बना के उनके अगेंस्ट दवाइयां बना दो। वेजेस के अगेंस्ट बेव बना दो, बेवासिजुमाब। EGFR के अगेंस्ट टुक्सी बना दो। CXCR के अगेंस्ट मोगैमोलूजिमैब। ठीक है, और HER2 अगेंस्ट ट्रास्टुजिमाब बना दो। ये अल्टीमेटली सारे क्या कर रहे थे? NF काबा बीटा मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी पाथवे बना रहे थे। ठीक है, फिर इंटरल्यूकिन सीक्रिएटेड थे तो IL-6 के अगेंस्ट सिलटुक्सीमैब और TNF के अल्फा के अगेंस्ट infliximab बना दो। ठीक है, and then how can you prevent? If we know that certain diet and lifestyle factors like obesity can cause increase in inflammation, you change your diet that is a little less pro-inflammatory. ठीक है, so these are the clinical applications of inflammation. IHC is a technique that utilizes antibodies targeted to specific proteins or mutant protein domains. ठीक है, जब विजुअलाइजेशन ऑफ प्रोटीन एक्सप्रेशन इन टिश्यू बायोप्सीज इज अचीव्ड थ्रू एन एंजाइम व्हिच इज ड्यू टू एन एंटीबॉडी दैट एक्टिवेट्स फ्लोरेसेंस और क्रोमोजेनिक रिसेप्टर। बेसिकली क्या है, IHC एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ऐसी एंटीबॉडीज बनाते हैं जो जाके या तो
ट्यूमर के प्रोटीन के साथ या म्यूटेंट प्रोटीन डोमेन के साथ जाके अटैच हो जाती है। मेनली वो प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है। हाँ, तो फिर हम उसके उस एंजाइम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, या तो किसी फ्लोरोसेंट रिपोर्टर से या क्रोमोजेनिक रिपोर्टर से। कर हम यही रहे हैं, एंटीबॉडीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। वो एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट है? कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन या म्यूटेंट प्रोटीन डोमेन्स के अगेंस्ट। ठीक है, ये रिजल्ट इज इंटरप्रेटेड एट अ लेवल स्टेन। ठीक है, सो जो IHC है उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, जैसे टिश्यू जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए जिसपे IHC लगे, वो वेल फिक्स्ड होना चाहिए, वेल टेंड होना चाहिए। ठीक है, और रेडिली अवेलेबल होना चाहिए पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू। ठीक है, फॉर टिश्यू सार्कोमा मोस्ट कॉमन IHC मार्कर्स जो यूज होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जिसमें आता है वाइमेंटिन, केराटिन और डेस्मिन। ठीक है, वीकली वाइमेंटिन, केराटिन, डेस्मिन, these are intermediate filaments। दूसरा आता है ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन। तीसरा है S100। ठीक है, ये हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसकी। फिर हम लिखेंगे यूजेस ऑफ IHC। यूजेस ऑफ IHC आप 3 में डिवाइड कर सकते हो। पहला, टू आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन। सेकंड, टू बी यूज्ड एज सेकंड लाइन मार्कर्स। थर्ड, टू यूज एज सरोगेट मार्कर्स फॉर सर्टेन ऑल्टरेशंस। ठीक है, पहला, लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंट मार्कर्स हैव डिफरेंट सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। ठीक है, इसमें हम ये लाइंस सारे लिखेंगे, लाइन ऑफ मार्कर्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के लिए याद करने सब कुछ मायो जैसा हो, क्योंकि मसल का स्पेसिफिक है मायो। ठीक है, तो मेलानोसाइट इंड्यूस्ड डेस्मिन ये थोड़ा अलग है। स्मूथ मसल एक्टिन, उसके अलावा मायोजेनिन और कैलपोटिनिन। ठीक है, तो इसमें मायोजेनिन याद रखा, मसल स्पेसिफिक एक्टिन याद रखना। 2 एक्टिन है, स्मूथ मसल एक्टिन, मसल स्पेसिफिक एक्टिन, मायोजेनिन। ठीक है, तो ये मसल डिफरेंशिएशन है। नर्व शीथ के लिए SOX 10 और S100। ठीक है, SOX 10 and S100 इज नर्व शीथ डिफरेंशिएशन। मेलानोसाइट इज मिलान एंड HMB 45। एंडोथेलियल डिफरेंशिएशन, इसको मैं बहुत ही गंदी तरीके से बताऊंगी जिससे तुम मुझे मारोगे शायद। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल है। ठीक है, गोल गोल सा, ब्लू ब्लू सा। ठीक है, और ये गोल गोल ब्लड वेसल जो है, ठीक है, इट इज शोइंग, ये CD जैसी लग रही है ना, गोल गोल। ठीक है, तो ये जो गोल गोल है, तो ये CD31 और 34 जो है ये एंडोथेलियल डिफरेंशिएशन के लिए है। ठीक है, फिर इसके आसपास जो जो आसपास मतलब ब्लड वेसल के आसपास भी फाइब्रोहिस्टोसिटिक कुछ वो होते हैं ना, टिश्यूज होते हैं। तो इस CD के आसपास अगर CD31 34 यूज हो चुका है तो 34 को डबल कर दो, तो उसके आसपास CD68, 34 का डबल CD68। सो एंडोथेलियल डिफरेंशिएशन है 31, उसके आसपास का फाइब्रोहिस्टोसिटिक डिफरेंशिएशन है CD68, और एपिथेलियल हमको पता है साइटोकेराटिन है। ठीक है, सो ये है इम्यूनोहिस्टोकेमिकल मार्कर टू डिटरमाइन द लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेकंड हम करते हैं एज सेकंड लाइन मार्कर्स। ठीक है, सेकंड लाइन मार्कर्स जो है ये यार थोड़े मोर स्पेसिफिक होते हैं, कि ये जो है आपको एग्जैक्टली ट्यूमर ही बता देगा कि कौन सा वाला है। ठीक है, जैसे म्यूसिन 4 अगर किसी में एक्सप्रेस हुआ है तो वो लो ग्रेड फाइब्रोमिक्सॉइड सार्कोमा है। ठीक है, H3K27ME3 खतरनाक सा है, ये मैलिग्नेंट पेरिफेरल नर्व शीथ ट्यूमर का है, और ETV4 इज इन राउंड सेल सार्कोमा। ठीक है, CD31 अगर किसी में पॉजिटिव आया है तो वो एपिथेलियोइड एंजियोसार्कोमा है। ठीक है, ये हमने पढ़ा ही था एंडोथेलियल डिफरेंशिएशन की, गोल गोल एंडोथेलियम CD जैसा लग रहा है तो CD31। ठीक है, यही हमने यहाँ लिखा है कि अगर CD31 किसी में आ रहा है तो एंडोथेलियल डिफरेंशिएशन बताता है, हाईली सजेस्टिव ऑफ एंडोथेलियोइड एंजियोसार्कोमा। ठीक है, तीसरा, ये सरोगेट है टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर ऑल्टरेशंस। ठीक है, जैसे कि अगर किसी में STAT6 पॉजिटिव आया है तो वो सॉलिटरी फाइब्रस ट्यूमर होगा, INI पॉजिटिव आया है तो एपिथेलियोइड सार्कोमा, न्यूक्लियर कैम्टा 1 है तो एपिथेलियोइड हेमांजियो एंडोथेलियोमा, और TFE पॉजिटिव आया तो एल्वियोलर सॉफ्ट पार्ट सार्कोमा। लास्ट है MDM2 जो है इट इज वेल डिफरेंशिएटेड लाइपोसार्कोमा में। ठीक है, ये जो हम एम्प्लीफिकेशन पता कर रहे हैं इन सब का, ये सब फिश में पता करते हैं। ठीक है, यही मिला है मुझे, इससे ज्यादा नहीं मिला है HC का कुछ।
दिल्ली से आ रहा है, मतलब आएगा एग्जाम में, चलो याद रख लेना। ठीक है, ठीक है। तो मेट्रोनोमिक कीमो ने, देखो बिफोर वी स्टार्ट ना, इसमें बहुत कुछ रेपिटेशन है, तो अल्टीमेटली एग्जाम के पहले लिखना क्या है अपने देख लेंगे, बट बेसिकली थेरेपी पॉइंट क्या है, कन्वेंशनल कीमोथेरेपी वीकली डोज डेंस होता है, या 2 वीकली होता है, या 3 वीकली होता है, तो दैट कीमोथेरेपी इज ऑलवेज गिवन एट मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज। ठीक है, यूजुअली 3 वीकली देते हैं, बट नाउ डोज डेंस रेजिमेंट्स हैव आल्सो कम व्हिच आर गिवन 1 वीक और 2 वीकली आल्सो। तो बट बेसिकली आप जब भी कीमोथेरेपी देते हो तो वो ऐसे वीक मतलब एक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंतर में देते हो। What happens is when you are giving the therapy, it is a maximum tolerated dose for that therapy, जो आपने ये BSA वगैरह कैलकुलेट करते हैं उसके हिसाब से, जैसे सिस्प्लैटिन जैसे 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर या 100 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर ऐसे ऐसे अपने देते हैं, और बाद में अपने 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता का गैप रखते हैं। मेट्रोनोमिक कीमोथेरेपी का मतलब क्या है? इट इज लाइक अ मेट्रोनोम। मेट्रोनोम इज दैट सॉर्ट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो ऐसे पीरियोडिकली बजता रहता है। तो मेट्रोनोमिक इज आप डेली और at a very periodical time you are giving a very low dose of therapy. That low dose of therapy in itself is not sufficient to cause the damage, cytotoxic damage that chemotherapy causes, because conventional chemotherapy maximum dose पे देते हैं जो टॉलरेट किया जाता है, और बीच बीच में देते हैं। ये हम टेक्निकली रोज देते हैं एवरी डे एट अ वेरी लो डोज, and our main aim at giving this therapy is that plasma level of the dose should be maintained. It is like taking an antibiotic. 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स लिया तो 2 या 3 हाफ लाइफ के बाद एक बेसिक प्लाज्मा लेवल ऑफ डोज बन जाता है। तो अपने को बेसिकली इसमें ये करना है, जो कन्वेंशनल कीमोथेरेपी होता है ना, उसमें आप इंटरमिटेंट बर्स्ट देते हो डोज का, और बाद में रिकवरी के लिए पेशेंट की बॉडी को टाइम देते हो। यहाँ पे आप रोज डोज दे रहे हो, और वो एक सब ऑप्टिमल डोज दे रहे हो, पर वो रोज डोज देने से पेशेंट की बॉडी के अंदर एक डोज का लेवल मेंटेन होता है, एंड दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो उसके कारण फायदा क्या है कि आपको सपोर्टिव थेरेपी का जरूरत कम पड़ता है। जैसे कीमोथेरेपी के बाद ब्लड काउंट्स फॉल होते हैं, GCSF वगैरह देना पड़ता है, फिब्राइल न्यूट्रोपेनिया के चांसेस हैं, ये सब मेट्रोनोमिक कीमोथेरेपी के साथ नहीं होता, तो पेशेंट का टॉलरेंस बढ़ जाता है। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ मेट्रोनोमिक कीमोथेरेपी। दूसरा उसका एक्शन क्या है, बेसिकली उस पे आर्टिकल है। ठीक है, सो मेट्रोनोमिक कीमोथेरेपी, देखो toxic effects and chemo resistance are the major hurdles in chemotherapy, and to avoid these problems caused by traditional chemotherapy, a new modality of drug administration called metronomic chemotherapy has emerged. इसका मेन क्या है? Involves frequent administration of conventional chemotherapeutic agents. Conventional agents ही देते हैं हम लोग at very low doses to target activated endothelial cells in the tumor. ठीक है, एंजियोजेनेसिस जो होता है ना ट्यूमर का कंपोनेंट, उसके जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उस पे कीमोथेरेपी, कन्वेंशनल कीमोथेरेपी एक्ट करता है, तो वो सेल्स को बाद में रिकवर होने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि कन्वेंशनल कीमोथेरेपी हम 2 या 3 हफ्ते पे देते हैं। इस केस में क्या होता है, जो कीमोथेरेपी एक्ट कर चुका होता है उसी एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर ये लो डोज कीमोथेरेपी भी ऐड करता है। सो व्हाट हैपेंस इज यू आर increasing that effect and maintaining it over a long period of time by maintaining a plasma level of dose by giving daily administration of low dose chemotherapy. The advantages include minimal adverse effect and a rare chance of developing acquired drug resistance. जो conventional chemotherapy में ज्यादा होता है, यहाँ पे it's a rare chance of developing acquired drug resistance. ठीक है, previously it was thought that they act by targeting angiogenesis, but recently additional mechanisms have also been discovered. ये उसका बेस है, इतना लिख दिया तो भी 1 मार्क तो नक्की मिल जाएगा। ठीक है, तो समझने के लिए frequent administration of low doses, 1/10 to 1/3 of the maximum tolerated dose of certain antineoplastic drugs is known as metronomic chemotherapy. ठीक है, the effects may be further improved by concurrent administration of another agent that inhibits the process of growth and tumor formation, for example bevacizumab. ठीक है,
तो कॉन्सेप्ट वही है, कन्वेंशनल कीमोथेरेपी के अंदर हम एंटी कैंसर ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड इन नियरली मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज एंड दे ऑल्टरनेट विद लॉन्ग टर्म ड्रग फ्री पीरियड, ठीक है, क्योंकि 2-3 हफ्ते का अंतर रहता है, टू अलाउ द पेशेंट टू रिकवर फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट्स. In addition, despite initial improvement, recurrence is a common problem in both metastatic as well as high risk cancers. तो साइंटिफिक बेसिस मेट्रोनोमिक का क्या है कि कन्वेंशनल एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स टारगेट वास्कुलर एंडोथेलियल सेल प्रोलिफरेशन, मतलब एंजियोजेनेसिस टारगेट करते हैं, बट द एंटी एंजियोजेनिक इफेक्ट कैन नॉट बी सस्टेन्ड बिकॉज एंडोथेलियल सेल्स गेट अ चांस टू रिकवर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ब्रेक. दिस कैन बी ओवरकम बाय फ्रीक्वेंट ट्रीटमेंट एट लो डोजेस. ठीक है, तो मेट्रोनोमिक कीमोथेरेपी बाय डेफिनेशन फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कीमोथेरेपी एट लो डोजेस विद नो प्रोलॉन्ग्ड ड्रग फ्री इंटरवल, thus it achieves a sustained low blood level of the drug without significant toxic side effects. Main characteristics क्या हैं? Frequent dose administration, biologically optimized dose instead of the maximum tolerated dose, हीमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर जैसे GCSF वगैरह इसमें देने का जरूरत पड़ता है, उसमें देने का जरूरत नहीं पड़ता. ओरल ड्रग्स आर प्रेफर्ड क्योंकि पेशेंट को IV. तो एक आपका मैकेनिज्म ये है. दूसरा है एक्टिवेशन ऑफ इम्यूनिटी. ठीक है, द वेल नोन एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी ऑन द इम्यून सिस्टम आर न्यूट्रोपेनिया एंड लिम्फोपेनिया, ये अपने को पता है. उसमें से बहुत कुछ ड्रग्स का स्पेसिफिकली बोन मैरो सप्रेशन ज्यादा होता है. तो फॉर एग्जांपल एंथ्रासाइक्लिन, टैक्सेन्स एंड साइक्लोफॉस्फेमाइड्स. some of these, for example anthracycline, taxane, cyclophosphamide possess immune stimulatory properties. मतलब क्या है, T regulatory cells जो होते हैं बॉडी में which are quite relevant for metronomic treatments. T regulatory cells are CD4 25+, FOX3P+. They can inhibit antigen specific immune response. So T regulatory cells can thus inhibit anti-tumor immune response by the body. तो T regulatory cells ये anti-tumor response inhibit करते हैं. तो अगर T regulatory cells को हमने inhibit किया तो anti-tumor immune response body का inhibit नहीं होगा, मतलब body can fight the tumor in a much better manner. So हाँ, impairment of T regulatory activity by either specific blockade or depletion is a method to enhance the immune response against tumor-associated antigens. Many studies, both preclinical and clinical, have documented the effect of low-dose cyclophosphamide on T regulatory cells. It reduces the number of T regulatory cells, therefore suppresses the function of T regulatory cells, therefore increases both lymphocyte proliferation and the memory T cells, therefore immune system gets activated more towards the cancer cells. Third, induction of tumor dormancy. पहला था angiogenesis को inhibit, दूसरा था immunity को increase, तीसरा है induction of tumor dormancy. Tumor dormancy occurs as a result of cell cycle arrest. Suppression of angiogenesis, apoptosis of malignant cells, and immune surveillance are three main methods by which metronomic chemotherapy induces tumor dormancy. मतलब tumor basically static phase में चला जाता है. ठीक है, यूजुअली ना तुम देखोगे ना मेट्रोनोमिक कीमोथेरेपी ना यूजुअली क्या होता है, समझो कोई हेड एंड नेक कैंसर का केस है, उसमें हम कभी कभी देते हैं, एडवांस्ड सीए ओवरी वगैरह है उसमें हम कभी कभी देते हैं. तो दे आर यूजुअली गिवन फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, ईदर इन द वेरी एडवांस्ड सेटिंग और एज अ ब्रिज टुवर्ड्स मोर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट. तो बेसिकली अपना मेट्रोनोमिक कीमोथेरेपी का रोल अभी तक कन्वेंशनल कीमोथेरेपी की जितना डिफाइंड नहीं है. कन्वेंशनल कीमोथेरेपी का रोल साइटोटॉक्सिसिटी है. मेट्रोनोमिक कीमोथेरेपी का मेन एम is more in the advanced and palliative setting and in the bridge to therapy setting, जहां पे आपको ट्यूमर बढ़ नहीं रहा ना, इतना ही ध्यान रखना है. मतलब थोड़ा सा नैरो रोल है उसका. मेरे को इतना पता है, कॉन्फ्रेंस में जो वो लोग डिस्कस कर रहे थे, मतलब एट द टाइम ऑफ मेट्रोनोमिक थेरेपी इतना कब आया, जब कोविड टाइम पे, बिकॉज दे वर नॉट ऑपरेटिंग पेशेंट्स एंड RT मशीन भी बहुत कम टाइम के लिए चल रही थी, तो वेटिंग पीरियड ज़्यादा था. तो उस टाइम उन्होंने कुछ पेशेंट्स को मेट्रोनोमिक थेरेपी पे रखा
एंड वो मेट्रोनोमिक थेरेपी देते देते वो पेशेंट का कुछ का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ गया, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स आ गया। और वो लोकली एडवांस CTRT या ऐसे कोई पेशेंट्स थे। तो फिर उन लोगों ने बोला कि किसी भी पेशेंट का लॉन्ग वेटिंग पीरियड है, तो उस लॉन्ग वेटिंग पीरियड में पेशेंट को बिना किसी ट्रीटमेंट से रखने से बेटर है कि आप उसको मेट्रोनोमिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। एग्जैक्टली। तो वही है ना, मतलब मेट्रोनोमिक से आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, कंट्रोल एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि आप डोज कम दे रहे हो। तो इवेंचुअली साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी जैसा उसका रोल नहीं है, बट एटलीस्ट एक स्टैटिक रख सकता है वो ट्यूमर को। इट इज साइटोस्टैटिक नॉट साइटोटॉक्सिक। ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है बस, ठीक है। सो एंजियोजेनेसिस, इम्यूनिटी, ट्यूमर डोरमेंसी, चौथा है ग्रेड ऑफ सेनेसेंस। ये कल राकेश ने पढ़ाया था, किसने पढ़ाया था? राकेश ने पढ़ाया था ना कि पहले वो सेल को रिपेयर करता है और रिपेयर नहीं हुआ तो डिपेंड करता है वो सेनेसेंस में जा सकता है सेल या फिर एपोप्टोसिस में जा सकता है। सेम चीज। लो ग्रेड डैमेज बाय कीमोथेरेपिक एजेंट्स मे स्टार्ट senescence associated with anti-proliferative response. The cascades of caspase activity that induces cellular apoptosis is not activated क्योंकि डैमेज लो ग्रेड का है ना, तो सेल मरेगा नहीं, सेल बस प्रोलिफरेट करना बंद हो जाएगा। चौथा है 4-dimensional इफेक्ट। ये 4D फिनोमिना है। दिस इज ड्रग ड्रिवन डिपेंडेंसी और डेप्रिवेशन has been hypothesized by these guys to explain the efficacy of drug regimens using intermittent drug interruptions. According to this, what is there is tumor cells become dependent on chemotherapy agents during long exposures, and sudden withdrawal or replacement therapy may lead to cell death. This hypothesis may be used to explain the situations where multiple drugs are used with different periods of administration. ये मेरे को कुछ खास समझ भी नहीं आया, पर ये है। तो बेसिकली कुछ समझना है तो एंटी एंजियोजेनिक प्रॉपर्टी डेफिनेटली लिखना, इम्यूनिटी डेफिनेटली लिखना, सेनेसेंस लिखना, डोरमेंसी, ये चार तो नक्की लिखना ही, ठीक है। तो अभी तक देखा जाए तो व्हाट इज मेट्रोनोमिक कीमोथेरेपी डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट क्या है, इसका डिफरेंस फ्रॉम कन्वेंशनल कीमोथेरेपी और द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेट्रोनोमिक कीमोथेरेपी। इन दोनों में से कोई एक भी लिखा तो चलेगा बिकॉज ऑलमोस्ट बोथ आर सेम, बस अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो एंटी एंजियोजेनेसिस, ट्यूमर डोरमेंसी, इम्यूनिटी एंड सेनेसेंस, ये चार मैकेनिज्म हो गए। इसमें तुम्हारे 2 पन्ने भर गए। उसके बाद आता है ड्रग्स यूज इन मेट्रोनोमिक कीमोथेरेपी, तो ये सारे हैं साइक्लोफॉस्फेमाइड, मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट मेन तो हेड एंड नेक में यूज होता है, इटोपोसाइड, विनब्लास्टिन, पैक्लिटेक्सेट, ठीक है। ये 5 याद रखना। ये टेबल बना देना एक। मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर प्रीवियसली ट्रीटेड विद कन्वेंशनल कीमोथेरेपी, यू कैन यूज साइक्लोफॉस्फेमाइड। एंडोक्साइन यूज करते हैं ना, एंडोक्साइन इज साइक्लोफॉस्फेमाइड। डेली ओरल एंड मीथोट्रेक्सेट ओरल ट्वाइस वीकली। HER2 positive metastatic breast cancer previously treated with Herceptin and conventional chemotherapy. Again, cyclophosphamide, methotrexate, trastuzumab के साथ कंटिन्यू रख सकते हैं every 3 weeks. ये ट्रास्टुजुमाब में तुम सालों साल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेशेंट का 2DA को वगैरह नॉर्मल है तो ओलिगोमेटास्टैटिक HER2 पॉजिटिव मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर को तुम ट्रास्टुजुमाब every 3 weeks पूरा साल 2-3 साल तक दो, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल में रहता है। रिकरेंट ओवेरियन कैंसर प्रीवियसली ट्रीटेड विद कन्वेंशनल कीमोथेरेपी, उसको साइक्लोफॉस्फेमाइड, एंडोक्सान चालू होता है बहुत लोगों का, आप देखना, एंड बेवासीजुमाब। मेंटेनेंस थेरेपी में ना अपने ओलापैरिब देते हैं एंड बेवासीजुमाब देते हैं। दिस इज मेंटेनेंस थेरेपी फॉर सी ओवरी। सी ओवरी का जो कीमोथेरेपी 4+4 या 3+3 प्लस साइटोरेक्टिव सर्जरी SOS हाइपेक, ये उसका पूरा प्रोटोकॉल है। पर इसके बाद मेंटेनेंस में आप ओलापैरिब, मतलब वही पार्प इनहिबिटर्स, या फिर जो पेशेंट पार्प इनहिबिटर अफोर्ड नहीं कर सकते उनमें पुअर मैंस ड्रग है अपना लेट्रोजोल एंड टेमोक्सिफेन, जिसमें ER/PR पॉजिटिव रहता है तो उसको ये भी देते हैं। बट दैट इज मेंटेनेंस थेरेपी, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मेट्रोनोमिक थेरेपी। मेट्रोनोमिक थेरेपी में आप कीमोथेरेपी दे रहे हो अभी भी, तो कीमोथेरेपी देने का है तो उसमें एंडोक्सान अगर किसी पेशेंट को चल रहा हो, आपके फॉलोअप में कभी कोई पेशेंट आए तो उसको ध्यान दें। एंडोक्सान इज बेसिकली मेट्रोनोमिक कीमोथेरेपी, यू आर गिविंग इट इन एन एडवांस सेटिंग एंड बेवासीजुमाब विद दैट।
मेटास्टैटिक और लोकली एडवांस्ड न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोमा, उसको 5-FU इन्फ्यूजन डेली एंड मंथली लॉन्ग एक्टिंग ऑक्टेट्राइड रिलीज इंजेक्शंस। ठीक है। टॉक्सिसिटी, high grade toxic effects are rare or not found. Most common toxic effects are mild nausea and vomiting, mild to moderate anemia, neutropenia, leukopenia, lymphopenia, as well as low grade fatigue. So toxic effects chemotherapy वाले ही हैं but low grade। prolonged metronomic chemo, हाँ ये एक important है। prolonged metronomic chemotherapy may lead to cumulative toxicity of anti-cancer agents which can lead to secondary diseases. For example, cumulative dose of etoposide और temozolomide pediatric group में, age group में देते हैं, जो मैंने नहीं पढ़ाया ऊपर क्योंकि अपने इतना यूज नहीं करते हैं इतना pediatric का, can lead to secondary leukemia. Special attention must be given to growth and development of young children receiving metronomic chemotherapy. A recent study has found potential association of subdural hematoma in a child with medulloblastoma with metronomic chemotherapy. बस future perspective क्या है? Evidence from studies has established metronomic chemotherapy as a new treatment strategy to control certain type, control है, देखना इसको treat नहीं कर रहे हो, control है certain types of malignancies. So future cancer research should aim to identify the best agents to use according to tumor type, calculate the doses of each agent to be used both alone or in combination, and to define the timing of drug administration. ठीक है, तो आपका 2-3 पन्ने का, ये 5 मार्क के ऊपर नहीं पूछते हैं तो 2-3 पन्ने का आंसर हो जाएगा। डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस क्या है, या फॉर दैट मैटर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, 4, एंड ड्रग्स कौन से अपन यूज करते हैं, ये 4। ठीक है, और फ्यूचर पर्सपेक्टिव के ऊपर 2 लाइन, और उसका टॉक्सिटी क्या है, सर ड्रग्स कौन से यूज करते हैं, टॉक्सिटी। इतने में आपका 2 या 3 पेज आराम से भर जाएंगे और उतना ही लिखना है आपको। थैंक यू भाई। थैंक यू। ओके, थैंक यू।